हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टिप्स ऑफ साइंस एंड टेक। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वैलेंसी समझाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल सिखाई थी। पीरियोडिक टेबल यानी शॉर्टकट मेथड टू लर्न पीरियोडिक टेबल। उसका मैंने बहुत ही शॉर्टकट मेथड आप लोगों को समझाया था। आज मैं आपको उसी तरीके से वैलेंसी लर्न करना सिखाऊंगी। ये रही हमारी वैलेंसी और ये रहे हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, आज मैं आपको वैलेंसी लर्न करना सिखाऊंगी वही शॉर्टकट मेथड से। मेरे पास शॉर्टकट मेथड है वैलेंसी लर्न करवाने का, और इसका बेसिक्स बताऊंगी कैसे इससे वैलेंसी कहाँ से आती है, मतलब व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड वैलेंसी। वैलेंसी को इसकी वैलेंसी 1 कैसे होती है, हीलियम की वैलेंसी 0 कैसे होती है, लिथियम की वैलेंसी 1 कैसे होती है, मतलब इस चीज का मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी आज। ठीक है, मैं इसको ब्रीफ में दूंगी लेकिन आपको फुल्ली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। Now first of all I have written this definition. What is a valency? So according to chemistry, valency is the combining capacity of an element. Combining capacity, अब मैं आपको यहाँ पे मैंने पहले से ही पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखा है जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड नाउ now I will explain you. In other words, valency is the lose or gain of electrons, or it is a sharing of electrons. अच्छा, अब combining capacity का main मतलब यही निकल के आ गया हमारा कि lose और gain of electrons, और it is sharing of electrons. lose और gain चाहे sharing एक ही बात हो जाती है। या तो electrons, I think you all know what is electrons. Electrons in atomic structure. In atomic, now I will show you atomic structures. See, in these atomic structure we can see these are electrons. These small dots type you can see, these are electrons. So in an atom, in an atomic structure there is a nucleus. So suppose this is an metal and this is an atomic structure, and here is a nucleus, and then these are shells. Okay, and in these shells electrons move, and inside these nucleus, which is too small, inside these nucleus there are neutrons and protons, which makes it neutral. Okay, and protons are positively charged particles which survive, which are there in this nucleus, and these are electrons are negatively charged particles. Okay, so electrons keep on moving outside the nucleus, and then neutrons and protons are there inside the nucleus, and they stay there and they are stable. So now coming back to our own point, I will also explain these, and then first I will explain this point. So electrons, so in other words we can say that valency is the clear gain or share of electrons, or it is the sharing of electrons. So these electrons which I showed you just right then, in this atomic structure, these electrons keep on moving. This means that from these shells, these electrons are lost by that metal or gained by that metal in order to become like the nearest inert gas. Means आपका ये जो एटम है, मेटल का जो इसके अंदर एटम्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये हर एक मेटल अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बना जाता है। इनर्ट गैस मीन्स आई हैव सर्कल्ड ऑल्सो नियॉन और आर्गन, ओके, एंड देन yes of course हीलियम, उसके जैसा बनना चाहता है, तो फिर या तो वो लूज करता है या फिर वो गेन कर लेता है, और इस गेनिंग और लूजिंग को बोलते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग करता है, गेन लूज, मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वी यूज टू से दिस। ओके, सो कमिंग टू अ मेन पॉइंट, that now I have also written the explanation written by me. So see, every element in the periodic table wants to become like its nearest inert gas. Just right then I told you that every metal means every element in the periodic table. Suppose this is a periodic table, this,
and this is the periodic table. So every element here, hydrogen, helium, lithium, beryllium, and so on, these all periodic till calcium. In first 20 elements, because till 10th your first 20 elements are very much important, and you should know all these features of the first. Features means all the about first 20 elements, their valency, and what is this I have written, and so on. So I will explain this also, everything I am going to explain. So suppose this is the first 20 elements, and here every element wants to become like its nearest inert gas, like hydrogen, helium, lithium, beryllium. So here it wants to become like helium. या तो वो पीछे हो जाएगा, या फिर वो डोनेट करेगा, या फिर वो आगे जाके वो अपने गेन कर लेगा यहाँ पे भी, या फिर वो डोनेट करेगा, या फिर वो गेन करेगा. ये चीज मैं आपको बताऊंगी. So if an element that is a metal, if gives electrons, यानी if it loses electrons, मैंने यहाँ पे लिखा है loses electrons, मैं पूरा बताऊंगी अभी आपको. Loses electrons, then it loses electron, then that number of electrons which it gains or lose, that is the valency of that metal, which it gains or lose, not gains. Not only the gains, if that electrons which it gains and lose is the valency of that metal. Suppose इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें क्योंकि इन दोनों में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा. तो उसके फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हम कहीं से भी 2 कर नहीं सकते हैं, ठीक है. और इसमें 2 रहेंगे. तो मैं अभी आपको पीछे जाके एक्सप्लेन करवा देती हूँ. सी These are इसके बारे में now we are going to explain about it. इससे आपका पूरा बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मेन चीज है आपकी. ये चीज जो है ये बहुत मेन है, और इसका मैं बताऊंगी आपको. जैसे ये है, ठीक. These are the shells in a metal, which each shell has electrons, and these shells are located in an atom of a metal. And in order to become like the nearest inert gas, what I did give you the word nearest inert gas. They want to become like nearest inert gas, helium and neon, and then argon. Nearest inert gas. These shells donate electrons or share electrons or take some electrons, and then number of electrons which are donated, shared or taken away is the valency. यानी अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर उसकी वैलेंसी 1 होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो भी उसकी वैलेंसी 3 होगी. अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि हर एक शेल मतलब कितने शेल्स हो सकते हैं, इसमें कितने नंबर फिक्स इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब ये सब आप पूछेंगे मुझसे. और ये मेन पैराग्राफ मैंने आपके लिए बना के रखा है स्पेशली, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. In one shell, there is a fixed number of atoms, which can be there is 2. In second shell, only 8, and in third shell, 8 or 16 can also be there. Okay, this thing has to be noted. अभी आप छोटी क्लास में, अभी अगर जब तक आप 10th तक रहेंगे तब तक तो सेकंड या थर्ड शेल में 8 करके आपको पेयर बनाने होंगे. जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 8 करके पेयर बनाएंगे आप लोग. मैं बताऊंगी अभी इसके बारे में भी. Then in fourth shell the number increases, that is after 16 it becomes 32 and so on. यानी ऐड होते जाते हैं. 16 के बाद 32, and then 32 के बाद हमारा और 16 ऐड करके आ जाएगा 48, ऐसे मतलब so on. मतलब अभी मुझे इसका कंफर्म नहीं है थोड़ा so on का, because I have also studied till 32. इसकी मुझे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आया थोड़ी, ठीक है. तो फिर जितना मुझे पता है मैं सोच रही हूँ आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दूँ, कुछ गलत नहीं देना चाहिए. सो अब हमारे आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. ये चीज़ दिस शेल्स का स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसमें. और एंड ध्यान रखना है, आप जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आप बहुत नीटनेस से बनाएंगे और हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी, अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हमारे ये जो शेल्स हैं इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं हम उसको कॉमा लगा के लिखते हैं. कॉमा जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम में होती है, कॉमा लगा के ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट शेल में कितने हैं 2, सेकेंड शेल में कितने हैं 8, थर्ड शेल में कितने हैं 8,
ठीक है। एंड फोर्थ शेल में कितने हैं 2। तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी बस कुछ नहीं होता है इनमें, बस हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त बस हम लोग को पेयर वाइज जितने फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में और फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस उसे कॉमा लगा के लिखना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो सबसे पहला एलिमेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है उसमें, ठीक है। और फिर उसके ये देखिए नंबर भी इसका 1 है, मतलब ऐसे नंबर के हिसाब से हमारा चलता है, इस नंबर के हिसाब से चलता है, यानी जो एटॉमिक नंबर है सबका वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स हम उसे शेल्स में डिवाइड करते जाएंगे। एंड रिमेंबर दैट इन हाउ मेनी शेल्स कैन बी देयर, मतलब जितने पार्ट में डिस्टिंग्विश होता जाए उतने शेल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे शेल्स बनाए, 1 2 3 4 शेल्स बनाए हैं, तो वो 5 भी हो सकते हैं, आगे जाके 5 हो जाते हैं, फिर 6 हो जाते हैं, फिर 7 हो जाते हैं, मतलब कितने भी शेल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो 1, हीलियम में 2 तो फिर 2, फिर लिथियम में 3 तो फिर 3, और लिथियम में 3 देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट होता है, तो फिर मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 आते हैं, सेकंड शेल में सिर्फ 8 आते हैं और थर्ड शेल में सिर्फ 8 आते हैं, ऑन 10 सो ऑन इट डिस्टिंग्विश 2 8 8 8। जैसे हम रोल नंबर वाइज सीट में सीट है, सीट्स आपके सपोज करो क्लास में सीट्स हैं, फर्स्ट सीट पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, सेकंड सीट पे 8, फिर थर्ड सीट पे 8 और फिर नेक्स्ट सीट पे भी मतलब या फिर आपका ऐसा हो सकता है फर्स्ट सीट पे 2, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसा करके बच्चे आपके इंक्रीज जाते हैं, फिर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए बेरिलियम हाँ कहाँ पे थी मैं, हाँ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो फर्स्ट शेल में है तो फर्स्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल हमारा पूरा खाली जाएगा, जरूरी नहीं कि आप सेकंड शेल बनाएं। फिर थर्ड शेल, फिर थर्ड लिथियम जो है ये इनर्ट गैस क्यों है हीलियम, क्योंकि इसमें जो 2 है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी वो अपने में स्टेबल हैं, यानी इसमें फर्स्ट जो शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेल में स्टेबल होता है, यानी जिस भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट शेल में 2 बैठे हों और सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी 8 या फिर 16 या फिर फोर्थ शेल में 32 या फिर 8 कोई भी बैठे हो, तो फिर वो जो होते हैं ना वो इनर्ट गैस होती हैं, क्योंकि वो स्टेबल होती है। तभी तो मैं कह रही थी कि हर एक मेटल जो होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस से बनना चाहता है, यानी उसको अपने लास्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल, लास्ट शेल को बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल में, हम वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है, 8 या फिर वो 2 लाना चाहता है, क्योंकि शुरू में 8 लाना चाहता है, 2 लाना चाहता है, क्योंकि इसके बाद हमारे शेल्स बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं शेल यहाँ पे 2 थे, फिर यहाँ पे जाके 3 आते हैं हमारे, फिर 4 आगे जाके फिर 5 शेल्स बढ़ते जाते हैं हमारे। तो शुरू में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए शेल भी हमारे 2 ही शेल भी हमारा 1 शेल 2 रहेंगे। और मतलब शेल डज नॉट डिपेंड कि मतलब कि आपको 2 ही बनाना है या फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो फिर ये 2 और 1 में हो जाएगा। आपको आगे से टेबल लिखती जानी है, टेबल लिखते जाओगे आप आगे, यानी 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5 ऐसे करके लिखते जाओगे। तो देखो 3 है, 3 में फर्स्ट शेल में 2 ही रहेंगे, फर्स्ट शेल में हमेशा स्टेबल रहते हैं, स्टेबल मीन्स फर्स्ट शेल में 2 ही बैठ सकते हैं हमारे, तो आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 बैठ सकते हैं। अब सेकंड शेल में कितने बैठ सकते हैं, शेल में हमारे 8 नंबर तक बैठ सकते हैं, तो सेकंड शेल में हम लोग का अभी 3 है, तो फिर 2 के बाद हम लोग 1 ही बिठाएंगे, क्योंकि और कहाँ से लाएंगे भाई, और कहाँ से लाएंगे, इसमें जितना एटॉमिक नंबर उतने से लाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बेरिलियम में 2 फिर सेकंड शेल में 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 4 है। फिर एटॉमिक नंबर 5 फर्स्ट शेल में 2 सेकंड शेल में 3, एटॉमिक नंबर 6 फर्स्ट शेल 2 सेकंड शेल 4, एटॉमिक नंबर 7 फर्स्ट शेल 2 सेकंड शेल 5। सो ऐसे करके 2 6 फिर 2 7 2 8, ये हो गई नियॉन। यहाँ नियॉन तक मैंने आपको बता दिया है, नियॉन इज अ इनर्ट गैस बिकॉज इट इज स्टेबल। उसके फर्स्ट शेल में भी 2 है और सेकंड शेल में 8 है, 8 और आपको पता है जिसके वैलेंस शेल में है, जिसके लास्ट शेल में 8 होता है वो स्टेबल होता है, और तभी सब जो एटम सब बाकी के सब एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेबल है इसलिए इनर्ट गैस है। अब सब इसके जैसे बनना चाहेंगे, मैं बताऊंगी कैसे बनते हैं।
फिर सोडियम में 2 8, यहाँ 1 स्टार्ट हो गया, 2 8, यहाँ पर 2 8 हो गया। अब हम लोग को थर्ड शेल बनाना पड़ेगा, किसमें 11 नंबर है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे 2 8 तो रहेगा। इससे आगे हम बढ़ाना, 8 से आगे नहीं, 8 से आगे अगर आपको बढ़ रहा है तो आपको इट मीन्स अगर आपका 2 9 हो रहा है यहाँ पे तो रब करके आप यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 क्योंकि थर्ड शेल में 1 हो जाएंगे आपको थर्ड शेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर 12 282, एटॉमिक नंबर 13 283, एटॉमिक नंबर 14 284, एटॉमिक नंबर 15 285, then 216 286, then 287, then 288। अब 288 हो गए। इसके भी लास्ट शेल में कितने हैं, 8 आ गए, ठीक है। इसके भी लास्ट शेल में कितने आ गए, 8, ठीक है। तो ये भी इनर्ट गैस है। इसके लास्ट शेल में कितने आ गए, 8, ये भी इनर्ट गैस है। इसके लास्ट शेल में कितने, इसके लास्ट शेल में कितने आ गए, 2, ये भी इनर्ट गैस है। 2 मीन स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, ठीक। अब इन सबको स्टेबल बनना है। अब वो स्टेबल कैसे बनेंगे देखो बताती हूँ। अभी पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ इसका एटॉमिक नंबर 19 2881। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 281, वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 2881। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 9 कभी नहीं हो सकता, लास्ट में कभी 9 नहीं हो सकता, ठीक है। ये गलत रॉन्ग हो जाएंगे, पूरे नंबर कट जाएंगे आपके। तो 288 फिर 1 हम लोग को यानी फोर्थ शेल बनाना पड़ेगा। फिर कैल्शियम का 2882, क्योंकि हम लोग के फोर्थ शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर कितना है 20282, ठीक है। अब उसको हर एक मेटल को, हर एक एलिमेंट को अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनना है। अब वो कैसे बनने मैंने आपको बताया है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट करके, टेक यानी लूज करके, या फिर शेयर करके। शेयर यानी डोनेट, लूज वही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 1 है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मतलब जो नंबर यानी दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डोनेटेड, शेयर्ड और टेकन अवे इज द वैलेंसी। अगर वो 2 डोनेट करेगा तो 2 उसकी वैलेंसी, 3 डोनेट करेगा तो 3 उसकी वैलेंसी, और उसके 4 डोनेट करेगा तो 4 उसकी वैलेंसी। उससे ज्यादा आगे वैलेंसी बढ़ती नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 है तो 1 क्या डोनेट करेगा, वैलेंसी बनी रहेगी। अब इसमें 2 है, मींस इट इज स्टेबल। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इनर्ट गैस होती हैं वो स्टेबल होती हैं। तो इसमें ना वो कोई कुछ क्योंकि वो 8 ही होता है उनके लास्ट में, ठीक है। तो फिर ये इनका हमेशा आप देखोगे वैलेंसी 0 होती है, इनकी सबकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 2 1। अब ये 1 डोनेट कर देगा, ठीक है। अब 1 हम लोग अपने पीछे वाले पेज पे वापस आ सकते हैं। अब ये 1 डोनेट कर देगा एंड देन इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। देखो 1 डोनेट कर देगा तो वो 1 जो डोनेट करेगा, ये जो 1 है, ये 1 जो चला जाएगा इसके पास से, देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो 1 इसके पास से चला जाएगा तो फिर ये वापस से 2 बन जाएगा। तो उसके फर्स्ट शेल में ऑलरेडी 2 है, तो दिस मीन्स इट विल बिकम स्टेबल, यानी हमारी वैलेंसी हो जाएगी 1। यानी मैंने क्या कहा था, जो हम लोग डोनेट करेंगे, जितने नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे वही हमारी वैलेंसी का नंबर हो जाएगा, ठीक। अब है हमारे पास 2 यानी ये 2 वो डोनेट कर देगा, क्योंकि अगर हम अब उसमें अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये ले क्यों नहीं रहा है, ये टेक अवे क्यों नहीं कर रहा है किसी से, बिकॉज इतना भारी नंबर 2 के बाद हम लोग कितने ऐड करें कि 8 आ जाए, 6 ऐड करेंगे और 6 ऐड नहीं ले सकते। यहाँ पे किसी के, आपने देखा है कि यहाँ पे किसी का 6 वैलेंसी हो, 6 नहीं ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 6 में हम लोग सिर्फ इस छोटे छोटे नंबर को हम डोनेट करते हैं, और जहाँ पे 6 आता है, जहाँ पे जैसे ये वैलेंसी हमारी 286, जहाँ 6 आ जाता है हम लोग उसे 2 ले लेते हैं, फिर वो 288 बन जाता है, तब 2 ले लेते हैं तो वो 2 वैलेंसी बन जाती है, ठीक है। तो फिर देखिए अभी हम लोग में बहुत आगे पहुंच गए थे। अब हम वापस अपने आते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 है, छोटे छोटे नंबर जो होते हैं 1 2 3 4, जैसे ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं 4 तक, ये हम लोग क्या कहते हैं, लूज करते हैं, दे देते हैं उसको वापस, ठीक है। तो यानी 1 लूज कर दिया। ये ध्यान रखिएगा शुरू के 6 एलिमेंट्स में हम लोग ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये लूज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो तो है ये तो स्टेबल ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो स्टेबल है, फर्स्ट शेल में क्या ध्यान रखिए, फर्स्ट शेल में कितने आते हैं 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 16, फोर्थ शेल में 32। और आपको उसके बाद अगर आपको और ब्रीफ में करना है तो फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 ऐसे करके आपको बनाते जाना है। यानी हमारा जो लास्ट शेल हो, ये ध्यान रखना है आपको, लास्ट शेल में हमेशा 8 आना चाहिए। लास्ट शेल में हमें कितने आना चाहिए 8।
तो ये अगर 2 ये स्टेबल है, उसके बाद 1, उसके बाद ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इसलिए लास्ट शेल में इनके यहाँ पे लास्ट शेल में 2 आ जाएगा। अगर 2 भी आ रहा है फर्स्ट 6 एलिमेंट्स में, हमारा लास्ट शेल में 2 आएगा, जिससे कि वो स्टेबल बन सके। क्योंकि खुद की जो इनर्ट गैस है हीलियम, उसके तो लास्ट शेल में 2 आ रहा है, लास्ट शेल यानी एक ही शेल है उसको, उसमें तो 2 है, तो फिर बाकी में हम लोग 8 ला के क्या करेंगे, वो गलत हो जाएगा फिर कॉन्सेप्ट, है ना। तो फिर अब ये यहाँ कितने डोनेट करेगा, 2 वैलेंसी, यहाँ पे कितने डोनेट करेगा, 3 वैलेंसी, यहाँ पे कितने डोनेट करेगा, 4 वैलेंसी। देन अब आपका स्टार्ट होता है मेन कॉन्सेप्ट गेन का। अब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे अब नंबर हमारा एटॉमिक नंबर क्या था हमारा, यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर है। तो फिर यहाँ पे ये जो 2 4 आ रही वैलेंसी 4 डोनेट कर देगा। अब हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो 2 और 5 + 2 कितने होते हैं, 7। आपको कैलकुलेशन करनी है तो सबको आती होगी। 5 + 2 कितने होते हैं, 7। तो फिर 5 में हम कितने ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्योंकि हम 5 को नहीं डोनेट कर सकते। आपने देखो किसी की बैलेंस यहाँ पे 5 नहीं होगी, 5 को कभी भी डोनेट नहीं करते हैं, वो बड़ा नंबर है क्योंकि। तो 5 में हम कितने प्लस करेंगे कि ए हमारा आ जाए 8, यानी हम लोग यहाँ पे करेंगे +3, दिस विल बिकम 8 एंड फिर ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कितना ये हो जाएंगे, हम लोग इसमें कितने प्लस करेंगे, +3, ठीक है। उसके बाद O, इसकी वैलेंसी 2 है। अब इसका नंबर एटॉमिक नंबर क्या है, 8। सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, सबका एटॉमिक नंबर देखेंगे 8। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 2 6। फिर इसमें कितने हमें चाहिए, फिर कितने और चाहिए हमें, 6 + 2 6, इसमें कितने चाहिए हमें, +2, जिससे कि वो 8 बन जाए। तो फिर +2 वही होगी वैलेंसी। यहाँ पे हमने +3 किया, +2 किया, वैलेंसी। अब फ्लोरीन 2 7, यानी 9 है, 2 7। यहाँ पे कितना चाहिए हमें, +1, क्योंकि 7 + 1 8 हो जाएगा, +1। अभी हो जाएगा स्टेबल। ये 3 बन गए हमारे स्टेबल, 1 वैलेंसी हो गई। अब नियॉन हमारी नर्ड गैस है। अब ये 10 कितना नंबर है, 10 नंबर आ गया हमारा 10, ठीक है। अब 2 प्लस में कितना प्लस करने की 8 10 आ जाए, 2 + 8 10, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में आपको पता है 2 बैठ सकते हैं, सेकंड शेल में हमारे 8 बैठ सकते हैं। तो फिर हो गया हमारा ऑलरेडी कितना, 10। तो फिर यहाँ पे अब हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, यानी भी आपके लिए मैं लिख देती हूँ +0, तो इसलिए हमारी वैलेंसी 0, यानी दिस इज ऑलरेडी स्टेबल। देन नाउ अब फर्स्ट शेल भी हमारा खत्म हो गया। फर्स्ट शेल में बच्चे फेल हो गए, आपने क्लास से एक्सपेक्ट से देखिए। फर्स्ट शेल में 2 बच्चे बैठने थे, हो गए। सेकंड शेल में 8 बच्चे बैठने थे, 8 हो गए। अब थर्ड शेल में हमारा जो है वो सिर्फ हमारे अब थर्ड शेल स्टार्ट हो जाएगा हमारे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मैंने आपको बताया 9 नंबर नहीं हो सकता, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट शेल में थर्ड शेल में हम लोग देखेंगे। थर्ड शेल में हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर देखिए ना आप लोग, 11 देखिए, 11 जो है 8 + 2 10 हो गए। यहाँ से इसी के बाद से स्टार्ट करना, ये नहीं कि आप वापस से स्टार्ट करो, इसी के बाद से स्टार्ट करना है। 10 हो गया। अब इस 10 में कितना मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 1 डोनेट किया था, 2 डोनेट किया था, 3 डोनेट किया था, 4 डोनेट किया, ये सब लूजिंग में आते हैं। और इसलिए हम लोग और फिर वापस से अब 11 ये जो है हमारा 11 12 13 14 15 16 15 हाँ क्या कहते हैं 14 तक हमारे सारे लूजिंग में आएंगे, यानी 1 2 3 4, क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर देखिएगा आप 11 12 282 13 283 14 284, तो ये हो गया अब स्टेबल। यानी 1 ये डोनेट कर दिया, इनके लास्ट शेल में 8 आ गया, ये 2 डोनेट कर दिया, इनके लास्ट शेल में 8 आ गया, 3 कर दिया, इनके लास्ट शेल में 8 आ गया, 4 कर दिया, इनके लास्ट शेल में 8 आ गया, ठीक है। ये डोनेट कर दिया हमारे। अब आ गया हमारा लूजिंग वाला, वापस से ये टेबल जैसे ये 1 2 जैसे हमारा 1 to 10 था, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट, वैसे ही हमारा 11 to 20 होगा। अब वापस से हमारा जो शेल है उसमें एटॉमिक नंबर 15 आ रहा है, तो 2 8 5 10 2 8 तो हमारा 10 हो गया, 10 में प्लस करेंगे 5, फिर उसके बाद तो आ गया 5 में कितने प्लस करें हम लोग
3 तो वो बन जाएगा हमारा स्टेबल। ठीक है, 5 में उसके बाद सल्फर 16 है, 2 8 6, यानी कितने प्लस करें हम लोग 2, वैलेंसी आ गई 2 3। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली 3 थी। ठीक है, फिर देखिए क्लोरीन में कितने प्लस करें, 7 आ गया वापस से हमारा, +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, इधर +2 इधर +1, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैलेंसी आ जाएगी 1। ठीक है, अब आर्गन, आर्गन हमारी वापस से वही हो जाएगी, आर्गन हमारी वापस से ही हमारी इनोर्ट गैस है, यानी 288 है आर्गन हमारी भाई। आर्गन तो ये स्टेबल है। लास्ट शेल में कितने आने चाहिए, 8। फर्स्ट शेल फिल हो गया, सेकंड शेल फिल हो गया, लास्ट शेल में कितने आने चाहिए, 8, ये भी फिल हो गया। तो फिर हाँ, अब हम लोग कितने प्लस करें, 0, बिल्कुल कुछ प्लस नहीं करना, ये ऑलरेडी स्टेबल है, यानी ये हो गई हमारी इनर्ट गैस और ये हो गया हमारा स्टेबल। लिख देते हैं इस पे भी हम लोग, ऑलरेडी स्टेबल। ठीक, अब हो जाएगा हमारा 19 एंड 20 नंबर है। 19 अब हमारा फर्स्ट शेल फिल हो गया, सेकंड शेल, थर्ड शेल फिल हो गया। अब हम लोग फोर्थ शेल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी भी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे 9 नहीं हो सकते, 9 इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो फिर 1 यहाँ पे आ गया हमारा 1, यहाँ पे हमारा फिर से वही स्टार्ट होगा जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1, ऐसे 1 2 3, वैसे हमारा फिर फोर्थ शेल में ये बढ़ता जाता है आगे। पता है आप लोगों को, आप कभी सर्च करेगा पीरियोडिक टेबल की पूरी वैलेंसी का, ये आगे बढ़ता जाएगा आपका पूरा 118 एलिमेंट्स का सर्च करिएगा, ये आपका पूरा आगे बढ़ता जाएगा, लंबे लंबे शेल्स बनते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये है हमारा 19 to 288, यानी 8 8 16 17 18 ऑलरेडी है। ठीक है, अब एक 1 चाहिए, यानी 19। ये हम लोग क्या करेंगे, डोनेट, जिससे कि ये इसके लास्ट शेल में 28 आ जाएगा, इसके लास्ट शेल में 8 आ जाएगा, जिससे कि हमारा ये पूरा हो जाएगा, जिससे कि ये डोनेट करने पर, ये डोनेट कर दिया तो नंबर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 डोनेट कर दिया तो नंबर हो जाएगा 2, जिससे कि लास्ट शेल में, दोनों के लास्ट शेल में क्या, बैलेंस शेल में क्या बन सके, स्टेबल, जिससे दोनों के लास्ट शेल में 8 नंबर आ सके। बस आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट शेल में 8 आना चाहिए। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गई, देन इट विल बी अ वेरी मच easier for you to learn this, okay? And और फिर आपको ये शेल्स बनाने अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई तो आपको पता चलेगा फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल में 8 आएंगे, थर्ड शेल में 8 आएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को आ जाएगा। अब ये आपको, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आ रही है तो उसका मेन तरीका क्या है, ऐसे लर्न करेगा, एक टेबल में बता रही हूँ, ऐसे फ्लो में याद करते जाइएगा। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आ रही तो ये तो हो गया हमारा बेसिक फीचर जो मैंने आपको समझाया, इसके पूरा समझाया, फिर पीछे गई, फिर पीछे का मैंने समझाया आपको, ऐसे ये। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब किसी को ये नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करिए, 1 0 1 2 3 4 3 2 ऐसे करके लर्न करेंगे और इसको फ्लो में बोलते जाइए, 1 0 1 2 3 4 3 2, फिर आ जाइए, फिर वहीं से 3 4 3 2 कहाँ तक आएगा, 8 तक आएगा, 8 वाले नंबर तक। फिर स्टार्ट करिए 1 0 1 2 3 4 3 2 से 16 तक आएगा, फिर स्टार्ट करिए 1 0 1 2 1 2। अब मतलब आपको ये देखना है कि जहाँ पे हमारा बिल्कुल हाईएस्ट नंबर आ जाए, 1 0 1 2 3 4। ठीक है, 1 0 1 2 3 4, फिर वापस से आपको 3 2 लिखना है, 1 0 1 2 3 4 3 2, फिर जहाँ पे हमारा लास्ट में 2 आ जाए फिर आ जाएगा 1 0 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, 4 आ गया हमारे यहाँ पे। अब वापस से हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे 3 पीछे 2। ठीक है, एक नंबर पीछे बढ़ता है, एक नंबर पीछे मतलब अगर किसी को ये चीज़ याद नहीं हो रही तो बता रही हूँ मैं आपको लर्न करने का। फिर हम लोग एक नंबर पीछे जाते हैं, 2 नंबर पीछे जाते हैं, 3 2, फिर 1 0 1 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से, 1 0 1 2 3 4 हो गया, अब 2 नंबर पीछे जाएंगे, 3 2, फिर 3 2 के बाद हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 0 1 2 3 4, फिर हो गया, फिर पीछे जाएंगे 3 2, फिर 1 0 1 2 1 2, क्योंकि 20 एलिमेंट्स तक है, इससे आगे मत लिख दीजिए क्योंकि आपको इससे आगे एलिमेंट्स के ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से पता है ना एलिमेंट्स पता है, तो फिर यहीं तक रखेंगे। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, मेरे संग रिवाइज करिएगा। और इस चीज़ को आपको भूले नहीं, इसलिए आपको रोज रिवाइज करना है, एटलीस्ट आपको रात को इवनिंग में जब भी आप पढ़ते हैं तब आपको रिवाइज करना है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नॉर्मल है टिल 10 तक, टिल 20 तक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये शेल्स बनाएंगे।
रोज रात को एटलीस्ट रोज रात को आपका ये काम है शेल्स बनाने का, नहीं तो एटलीस्ट आप वीक में 3-4 दिन तो शेल्स बनाइए, बाकी रोज आपको रिवाइज करना है। फिर से चलिए रिवाइज करते हैं एक बार मेरे संग आइए। 10123432 10123432 1012 यहीं पे खत्म हो गया। फिर से 10123432 10123432 10123432 लर्न हो जाएगा आपको पूरा ये, ठीक है। तो आज के वीडियो में मेरे हिसाब से आई होप कि आपको वैलेंस की समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस एनीथिंग लाइक इन दो पेजेस से, या फिर पीछे जो मैंने आपको ये पेजेस दिखाए थे रिगार्डिंग दिस, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक you so much and see you again in our next video. Thank you.